Hello everyone. Let's see the third analytical body, government analyst, under the administration of Drugs and Cosmetics Act 1940. So after watching this video, you will be able to understand the nature and functions of government analyst and under the Drugs and Cosmetics Act 1940. We have already discussed the administrative bodies of this act are advisory. Under that DTAB and DCC are there. We have already covered them. Then analytical section, that is what we are dealing with. The central drug laboratories in state and government analysis. So in last video we have seen CDL and drug control laboratories in state. Now in this video we are going to focus on government analyst, and the remaining are executive, licensing authorities, drug inspectors and custom collectors. So these collectively are administrative bodies, and in this video we will focus on government analyst. Now who is government analyst and what is government analyst? So we have already seen under the section of definitions, introductory, chapter 1 of D&C Act. In that video we have covered definitions. So any person appointed under section 20 of this act in relation to drugs and cosmetics is government analyst. And in relation to Ayurvedic, Siddha and Unani system, person appointed by central or state government under section 33F is government analyst. So in relation to drugs and cosmetics, appointment section is 20, and in relation to Ayurvedic, Siddha, Unani, the section number is 33F. Also we are having trick to remember. For government analyst it is section number 20. If same is for definition of inspector, then section number it is 21, and if it is Ayurvedic, Siddha, Unani government inspector, then it's 33G. So we have trick, we have already discussed in the definition. So this is the government analyst. So कोई भी बंदा अगर 33F के अंतर्गत या सेक्शन 20 के तहत रिगार्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स या फिर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो तो उसे क्या कहेंगे? गवर्नमेंट एनालिस्ट कहेंगे. Central government may also appoint government analysts for specified categories of drug and cosmetics under subsection 2 of section 20. So कुछ खास या कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरीज और D&C के तो कुछ स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20. So those person who wish to be government analyst, they should not have any financial interest in the import, manufacture or sale of drugs and cosmetics. So अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो ये गवर्नमेंट का पहला रूल होता है कि you should not have any financial interest in any private property or private authority, because you will be a public servant. So that is the reason. So any government analyst should not have any financial interest. The word is financial interest in the import, manufacture or sale of drugs and cosmetics. Now let's see the qualifications. If you wish to be government analyst, what qualifications are necessary? तो आपको क्या होना जरूरी है? You should be graduate in medicine or science or pharmacy or pharmaceutical chemistry of recognized university. किसी मान्यता प्राप्त या अधिकृत यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए. वो ग्रेजुएशन मेडिसिन में चलेगा, साइंस में चलेगा, फार्मेसी में चलेगा, फार्मा केमिस्ट्री में भी चलेगा, और विथ नॉट लेस देन 5 years पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ ड्रग. आपको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? ग्रेजुएशन के बाद 5 साल टेस्टिंग ऑफ ड्रग में एक्सपीरियंस होना चाहिए. A postgraduate degree in medicine और साइंस और फार्मेसी और फार्मा केमिस्ट्री, मतलब यही सब्जेक्ट ऊपर डिग्री बताई गई है, नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना है तो, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपको टेस्टिंग का कितना एक्सपीरियंस होना है? विथ नॉट लेस देन 3 years एक्सपीरियंस. इसका मतलब अगर आप ग्रेजुएट है तो 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग का, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो एक्सपीरियंस कम होता है, 3 years एक्सपीरियंस भी इज एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट एनालिस्ट. ये भी नहीं है तो क्या हो सकता है? क्या अभी आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आपके पास क्या है? एसोसिएटशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इन इंडिया. इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इन इंडिया का एसोसिएटशिप डिप्लोमा अगर आपके पास हो,
उसमें भी खास बात क्या होनी चाहिए, विथ एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें उस कोर्स में उस डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एंड विथ नॉट लेस देन 3 years एक्सपीरियंस इन द टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स इन द लैबोरेटरी। किसी लैब में टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स का आपको कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट और हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और टेस्टिंग लैबोरेटरी अप्रूव्ड फॉर द पर्पस बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। एक तो गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर आपको 3 साल का कम से कम टेस्टिंग ड्रग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ऐसे लैबोरेटरी जहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या टेस्टिंग लैबोरेटरी जो है उनके अंडर आपको 3 साल का कम से कम क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट डिप्लोमा है तो इसका मतलब आप ग्रेजुएट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन आपके पास एसोसिएटशिप डिप्लोमा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, और इनमें से किसी एक के अंडर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप गवर्नमेंट एनालिस्ट होने के लिए काबिल हो, एलिजिबल हो। दैट वाज द क्वालिफिकेशन। बहुत बार 3 या 4 मार्क के लिए क्वालिफिकेशन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, या फिर कई एकाध क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, प्रोवाइडेड दैट मीन्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड स्पेशल प्रोडक्ट, ये है शेड्यूल सी। A person to be appointed should produce evidence of satisfactory training in physiology, bacteriology or serology or pathology or pharmacology or microbiology and should have the said experience। इसका मतलब हमने अभी जो डिस्कस किया वो एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, मतलब डिग्री है तो 5 साल, पीजी है तो 3 साल, डिप्लोमा एसोसिएटशिप का है तो 3 साल एक्सपीरियंस, ये होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप शेड्यूल सी कैटेगरी के ड्रग्स को अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट एनालिस्ट उस कैटेगरी के हो रहे हो, होना है, तो आपके पास क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, सेटिस्फैक्टरीली ट्रेनिंग, आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रेनिंग की है, किनमें, आइदर फिजियोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी और सेरोलॉजी और पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इनमें आपने ट्रेनिंग किया है, आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा मेंशन होना चाहिए और ऐसा सबूत आपके पास होना चाहिए, तभी आप शेड्यूल सी के गवर्नमेंट एनालिस्ट हो सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डे ऑन विच चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट, चैप्टर 4 क्या है अभी हम देखने वाले हैं, हम अभी क्या देख रहे हैं, चैप्टर 2 देख रहे हैं, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। सो चैप्टर 4 है मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सो ये चैप्टर इफेक्ट लेने से पहले और इफेक्ट लेने के बाद उस दिन से इन द स्टेट पर्सन हुज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर कंसिडर्ड एडेक्वेट एंड कॉम्पिटेंस। अगर इस चैप्टर को जिस दिन में आना है उस दिन तक अगर किसी पर्सन को ट्रेनिंग उसका या एक्सपीरियंस एडेक्वेट कंसिडर किया है, पूरी तरह से सफिशिएंट कंसिडर किया गया है, मे बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड सच पर्सन मे बी कंटिन्यूड इन सर्विस आफ्टर 4 years ऑल्सो। सो उस चैप्टर के चलते हुए उस दिन से 4 साल तक तो आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट की पोस्ट मिल सकती है, और उसके बाद भी मिल सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो, अगर हायर अथॉरिटी चाहे तो। प्रोवाइडेड दैट, और क्या टर्म्स कंडीशंस है, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट एनालिस्ट शुड नॉट बी एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ट्रेड और बिजनेस कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। हमने पहली बार ही देखा है गवर्नमेंट एनालिस्ट के इंट्रोडक्शन में कि ही शुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, तभी आप पब्लिक गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई बन सकते हो। ये पहला रूल रहता है हमारे गवर्नमेंट का, टू बी एम्प्लॉई। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अगर आप वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने वाले हो तो ऑब्वियस है आपको उनमें कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। द पर्सन अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट शुड बी ग्रेजुएट इन वेटरनरी साइंस और जनरल साइंस और मेडिसिन और फार्मेसी। तो ये हमें वेटरनरी साइंस का या जनरल साइंस का हमारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड सेम विथ नॉट लेस देन 5 years एक्सपीरियंस, बट वेयर in the standardization of biological product or person having postgraduate degree in above faculty with not less than 3 years said experience। सेम क्राइटेरिया है
अगर आप वेटरनरी में काम करना चाहते हैं तो बस कंडीशन ये है कि आपकी उसमें कुछ तो एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन है तो 5 साल से कम नहीं, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 3 साल से कम नहीं। इतना एक्सपीरियंस आपको वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में होना चाहिए। द पर्सन्स ऑलरेडी अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट एनालिस्ट में कंटिन्यू टू रिमेन सर्विस। जो पर्सन ये डेफिनेशन आने से पहले ही गवर्नमेंट एनालिस्ट है, may remain in the service if appointing authority so desires। अगर अथॉरिटी को लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए, even though he does not fulfill the said qualification, अगर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वो क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो गवर्नमेंट एनालिस्ट बने रह सकते हैं अगर हायर अथॉरिटी थिंक्स सो, अगर हायर अथॉरिटी चाहे तो। सो दिस वेयर सम कंडीशंस, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि अगर आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में गवर्नमेंट एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वेटरनरी के होने चाहते हो तो आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक कॉमन चीज, अगर आप गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट एनालिस्ट बने हो, पहले से ही बने हो, ये चैप्टर 4 आने के पहले या फिर ये डेफिनेशन क्वालिफिकेशन की आने से पहले, तो अगर अथॉरिटी चाहती है तो आप कंटिन्यू रह सकते हो। और कॉमन कंडीशन या रूल या टर्म, यू शुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। नंबर 1, क्या जिम्मेदारी है इनकी? टू एनालाइज और टेस्ट द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स टू सेंड टू हिम by drug inspector or other person and to furnish the report of the results of such analysis or test। ये तो काम है, यही तो काम है इनका। जो भी इनके पास सैंपल दिए गए हैं ड्रग्स के या कॉस्मेटिक्स के, मे बी बाय ड्रग इंस्पेक्टर, मे बी बाय अदर पर्सन, मे बी बाय कोर्ट, जो भी सैंपल आए हैं उन्हें लेना, उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से रिकॉर्ड करना, उनके एनालिसिस करना, और जो भी रिपोर्ट है वो एज पर प्रोटोकॉल सबमिट करना, भेज देना। ये पहली जिम्मेदारी है। दिस इज द सोल एंड होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू फॉरवर्ड द गवर्नमेंट द रिपोर्ट्स ऑफ एनालिटिकल एंड रिसर्च वर्क विथ अ व्यू टू देयर पब्लिकेशन एट डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो जो भी गवर्नमेंट लेवल पर एनालिटिकल या रिसर्च वर्क रहता है, जो भी इनके पास टेस्टिंग एनालिसिस होता है, तो उसका जो भी रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड करना पड़ता है विद अ व्यू टू देयर पब्लिकेशन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इसकी पब्लिसिटी या प्रसार करना होता है। जो भी नई चीज़ें रिसर्च ओरिएंटेड हो वो सभी के सामने, पब्लिक के सामने ओपन हो, इसीलिए। सो दिस वेयर द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। वी हैव सीन इन दिस वीडियो the government analyst definition, the qualification required, terms and conditions to be a government analyst, and at last we have seen duties of government analyst. In next video we will see licensing authority under administration. Thank you so much.